Phenanthrene is a tricyclic, okay, tricyclic non-linear fused ring system. Okay, anthracene is a tricyclic linear fused ring system. What is the difference in between anthracene and anthracene is a tricyclic? Okay, means three rings are there, while phenanthrene is also tricyclic. Your anthracene is a linear one. Why? It is a non-linear fused ring system. How we can conclude this, or we can understand this, that structure of anthracene is likewise. This is the linear 1, 2, 3 tricyclic. Okay, fused because of these are the fused one. Now the structure of phenanthrene is it's very easier to draw. बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें सिर्फ नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर निकालना है और उसको अटैच रिंग. You can draw these like these, or you can also draw like this. Okay, only the structure. Now numbering. Okay, in this case, लाइकवाइज इन एंथ्रासिन में भी हम क्या करते थे, जो टर्मिनल रिंग है उसको पहले नंबरिंग होता था 1 2 3 4 6 7 8 9 10, मिडल रिंग को बाद. इसमें भी उसी तरह है. टर्मिनल रिंग 1 2 3 4, टर्मिनल रिंग 5 6 7 8, मिडल रिंग 9 10. सेम मेथड है कि टर्मिनल रिंग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर मिडल रिंग पर हम उसका एंड करेंगे. इसमें भी वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम इसको एंथ्रासिन का नंबरिंग होता है. okay? तो एंथ्रासिन एंड फिनैंथ्रिन बोथ कंटेन्स थ्री रिंग. एंथ्रासिन में स्ट्रेट लाइन में तीनों रिंग होते हैं जो कि फ्यूज्ड है, बट फिनैंथ्रिन में वही थोड़ा सा नॉन लीनियर. okay, this is the difference between anthracene and phenanthrene. Now okay, we will see about the next, that is the synthesis of anthracene. Synthesis of phenanthrene. Okay, synthesis of phenanthrene. Synthesis of phenanthrene में we will discuss about three major methods, that is first one Haworth synthesis, Haworth synthesis. Second one, दूसरा जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है वर्धन सेन गुप्ता, वर्धन सेन गुप्ता synthesis. And third one, Bogart Cook synthesis, Bogart Cook synthesis, Bogart Cook. We will see one by one. First of all, we will discuss about
the Haworth synthesis of phenanthrene. Haworth synthesis of phenanthrene. In case of Haworth synthesis, already we have seen the or discussed the Haworth synthesis of naphthalene, Haworth synthesis of anthracene, and now Haworth synthesis of phenanthrene. Haworth synthesis of phenanthrene. In Haworth synthesis of phenanthrene, we are using naphthalene along with a succinic anhydride as a reactant. Naphthalene, when condensed with a succinic anhydride in the presence of aluminum trichloride as a catalyst, produces ketonic acid in a first step. This ketonic acid is reduced by Clemenson's reduction. The ring closure takes place in presence of concentrated sulfuric acid, which finally reduced into the aromatization, which leads to the formation of phenanthrene. सिंपल है। नैफ्थैलिन को हम पहले सक्सिनिक अनहाइड्राइड से अटैच करेंगे, जो कि थर्ड मेंबर वी आर यूजिंग द टू रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट, दो रिंग जो है नैफ्थैलिन में ऑलरेडी। ओके, दीज आर द टू रिंग्स। इसको हम ऐड करेंगे थर्ड रिंग का मटेरियल। ओके, थर्ड रिंग में हमें क्या चाहिए, जैसे कि इस तरह से यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, अरे कितने हो गए ये, वन कार्बन, टू कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ, चार कार्बन का हमें मटेरियल चाहिए। तो वी आर यूजिंग हियर CH2, CO, O, CO, CH2, ये है सक्सिनिक एनाइड, ये चार कार्बन। इसका जैसे कि हमने प्रीवियस नैफ्थैलिन के सिंथेसिस और एंथ्रासिन के सिंथेसिस में यूज किया था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि रिंग पर अटैच करने के लिए हमें मदद करेगा। कैसे अटैचमेंट होगा, जैसे कि इस तरह से, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है ये ब्रेक डाउन होगा। ओके, और अटैच होगा इस तरह से, CO, ओके, CH2, CH2, COOH, मीन्स यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ जाएगा और इस CO इधर अटैच होगा, और इसमें यहाँ पर। ओके सर, यहीं का H उधर रिप्लेस होगा और इस तरह से ये अटैच होता जाएगा। नेक्स्ट, इसकी ट्रीटमेंट फिर होगी जिंक अमालगम ZnHg प्लस HCl के साथ, तो हमें मिलेगा phenanthrene butanoic acid, that is ketonic acid, समझ में आएगा। CH2, 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 COOH। क्या क्या चेंजेस हो गए इसमें, जैसे कि आपका जो यहाँ पे CO ग्रुप था उसका कन्वर्जन CH2 में हो गया, किस वजह से, जिंक अमालगम के साथ रिएक्शन होने पर। ओके, नेक्स्ट, अब इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा। ओके, ट्रीटिंग दिस विथ अ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या होगा देखिए, रिंग
साइक्लाइजेशन हो जाएगा, बट जो COH ग्रुप में से है H2O चला जाएगा, बट इट कम्स विथ डबल बॉन्ड। इसमें से क्या H2SO4 की वजह से, ओके, ये डबल बॉन्ड O, इसको वापस हम जिस तरह से यहाँ पर CO का कन्वर्जन CH2 में किए थे, सिमिलर टाइप से इसको भी वापस अगेन वन टाइम ट्रीटमेंट विथ HCl oblique ZN Hg gives you, okay, रिमूवल ऑफ, जैसे कि यहाँ पर अटैचमेंट हो गया, इस स्टेप में अटैचमेंट, और ये यहाँ पर इसी O का कन्वर्जन हो गया, ओके। नेक्स्ट, और इसका हम रिडक्शन करेंगे तो इट फाइनली गेट रिड्यूस टू पैलेडियम के साथ, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा okay, this is your phenanthrene. You can observe all the staples. Is there any doubt? किसी को कोई डाउट है इस पूरे स्ट्रक्चर में? देखिए, सॉरी, सिंथेसिस में नैफ्थैलिन की रिएक्शन हम करेंगे सक्सिनिक अनहाइड्राइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, ये CO का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है COH फॉर्म करेगा, फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर अटैक करेंगे, ओके। एक कार्बोनियम आयन अटैच होगा और ये रिंग मटेरियल यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जो कि है कीटोनिक एसिड। इसका नाम रहेगा 1-phenanthine ब्यूटानोइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड, जिसको हम जिंक अमालगम के साथ ट्रीट करेंगे तो जो CO है उसका कन्वर्जन होगा CH2 क्लेमेंसन रिडक्शन के जरिए, उसको हम वापस फिर साइक्लाइजेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। ये जो है ये है ब्यूटायरिक एसिड, 1-naphthalene ब्यूटायरिक एसिड, 1 2 3 4, ओके, 1 naphthalene। अब इसकी 1 की जगह अगर ब्यूटायरिक एसिड का पैरेंट कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4 naphthalene ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन का ब्यूटायरिक एसिड, इसको वापस हम ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, ओके, H2SO4 के साथ। तो ये जो अटैचमेंट हो जाएगा यहाँ पर CH2 तो ये हो गया, यहाँ पर जो है अटैचमेंट H2O रिमूव होगा इसमें से, बट CO बचेगा, OH और H कहाँ से, यहाँ का H और ये OH, H2O रिमूव हो गया बट रिमेन्स द CO कार्बोनिल ग्रुप। तो इसको वापस हम क्लेमेंसन रिडक्शन के जरिए CH2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर रहा एरोमेटाइजेशन का इशू, तो वो हम कंप्लीट करेंगे पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ एंड फाइनली वी विल गेट द फिनांथ्रीन रिंग। स्टेप्स इंक्लूड 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेप का रिएक्शन है। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस में आस्क फॉर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 5 मार्क्स को आता है तो आप इसी तरह से फ्लो चार्ट में लिखिए, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। अगर 10 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको क्या करना होगा, ये रिएक्शन सिंगली लिखनी होगी। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, फिर वापिस इसका सेकंड, यानी जो 5 रिएक्शन है वो इंडिविजुअली लिखने होंगे। टोटल 5 रिएक्शन सब रिएक्शन या 5 रिएक्शन स्टेप्स है। अगर 5 मार्क को पूछता है यू कैन गो विथ अ फ्लो चार्ट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, जो आपको याद रखने में मदद होगी। और 10 मार्क्स के लिए पूछता है तो यू हैव टू गो ईच स्टेप सेपरेटली, ईच स्टेप सेपरेटली आपको लिखनी होगी 10 मार्क्स के लिए जब आता है, ओके। दिस इज द ऑल अबाउट द Haworth synthesis of phenanthine. All of you getting this? Let us see
second synthetic method, that is बर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस। बर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस हम देखेंगे, इसमें 3 स्टेप के रिएक्शन, इसमें फर्स्ट 2 स्टेप में 2 रिएक्टेंट बनाए जाते हैं और थर्ड स्टेप में वो 2 रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स का एज अ रिएक्टेंट बोल के यूज कर फिनाइल बना। तो फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। इसको हम बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन के जरिए। इसकी रिएक्शन हम करेंगे मैग्नीशियम और ईथर के साथ, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेंजीन, जिसकी रिएक्शन होगी इथिलीन ऑक्साइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारा इथेनॉलिक बेंजीन, जिसकी ट्रीटमेंट होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। इट प्रोड्यूस 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। Okay, this is the first reactant of the this synthesis, but product of the first step. Second step में हम बनाएंगे 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सानोन। इसके लिए हमें लगेगा साइक्लोहेक्सानोन प्लस डाइथाइल ऑक्सैलेट, जिसका जो है रिएजेंट होगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन होने पे एडिशन होगा डायरेक्टली, और इसमें से जब CO2 रिमूव होगा, क्यों? क्योंकि हम इसको हीट देंगे तो CO2 रिमूव होगा और हमें मिलेगा 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सान। इन दोनों की रिएक्शन होगी स्टेप 3 में, ये सेकंड रिएक्टेंट। तो हमारा फर्स्ट इसका प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप का है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, जिसकी रिएक्शन होगी 2 कार्ब इथॉक्सी साइक्लोहेक्सान उनके साथ। इसको थोड़ा लिखने में मैंने चेंज किया है कि आपको समझ में। ये दोनों की SN2 रिएक्शन करेंगे हम। SN2 रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, जिसकी रिएक्शन होगी KOH और HCl के साथ। इसके लिए स्ट्रॉन्ग KOH रिक्वायर्ड है और हीट, तो हमें मिलेगा दिस इज द कीटोन प्रोडक्ट, जिसकी रिएक्शन होगी सोडियम और ईथर के साथ, जिसमें this ketonic group converted to OH group. This on phosphorus pentoxide reaction produces the phenanthrene ring structure, which on aromatization gives you the whole phenanthrene ring. इसमें आपको पूरा phenanthrene ring मिलेगा। Anybody having the doubt? यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं 2 सिंथेसिस फिनाइल के, एक है हैवर सिंथेसिस और दूसरा है वर्धमान सेनगुप्ता सिंथेसिस। तीसरा जो सिंथेसिस है वो अपन अगले इसमें देखेंगे। ओके।